Hello students, after completion of chapter 4, today we are going to start introduction of chapter 5. The chapter 5 is data handling. Chapter 5, data handling. Before starting this chapter, you should know what is the meaning of data. Data is what? Whenever you collect any raw information about anything, that is called your data. Suppose if I say how many students are there in your class who have scored more than 50% in each subject, then you will give me some information about that. That information is mean to be data. So the raw information about anything is called data. You can also say the unorganized raw data, raw information is called data. डेटा होने के बाद में व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डेटा हैंडलिंग. डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है इफ़ यू आर डीलिंग विद एनी डेटा, इफ़ यू आर ऑर्गेनाइजिंग इट, ग्रुपिंग इट एंड you are representing in a graphical form, if you are doing all the process with the data, then it is called a data handling. So this meaning of this chapter is you have to deal with the raw information and group it, and you have to represent it graphically, either of the graphically or in the tabular form. So now and the other things which we will study in this chapter is types of graphs, types of representation, types of representation. Types of representation are, first one is pictograph. बच्चों पिक्टोग्राफ आप छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सेकेंड वन इज बार ग्राफ. यू कैन ऑल्सो टेल इट इज ए डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ भी बोल सकते हैं आप इसको. थर्ड वन इज हिस्टोग्राम. This is the representation. This is the representation, and which type of representation? Graphical representation. ठीक है. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली तीन चीज़ें आती हैं. फर्स्ट वन इज पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम. तो यहाँ पे हम लोग पिक्टोग्राफ नहीं पढ़ेंगे. आपका जो सिलेबस है उसमें बार ग्राफ और हिस्टोग्राम है. अब इन दोनों जो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम है, यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अ बार ग्राफ एंड अ हिस्टोग्राम. सो लेट्स सी. अ बार ग्राफ and histogram. ठीक है. Before studying the bar graph and histogram, you should know what is raw data and how to represent in a tabular form. तो tabular form देख लेते हैं. Suppose it has been given that class marks दिए हुए हैं, ठीक है, and number of students are there. Number of students. If I say, मैंने ये बोला कि मैथमेटिक्स में 0 से 10 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 10 से 20 मार्क्स पाने वाले कितने हैं, 20 से 30 और 30 से 40. मैंने क्लास इंटरवल्स बना दिए कि 0 से 10 वाले कितने बच्चे हैं, 10 से 20 वाले कितने बच्चे हैं, 20 से 30 वाले और 30 से 40 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं. सपोज देयर आर 0 से 10 से 2 बच्चे हैं, 10 to 20 5 बच्चे हैं, 20 to 30 15 स्टूडेंट्स हैं और 30 to 40 7 स्टूडेंट्स हैं. सपोज दिस इज द नंबर्स. अब यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल. दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल इन विच
this is the interval, 0 to 10 is interval. The range of there is a range, some kind of range is there, that this is 0 to 10. And in that range, how many students are including? There is 2. So 2 is the frequency. So this column is the column of the frequency, and this is the column of class interval. This is class interval, and this is your frequency table. इसके अलावा इनका कुछ और भी नाम बुक में दिया हो सकता है जब भी आप टेबल में देखते हो तो, बट बेसिकली द टेक्निकल टर्म यूज्ड इज फ्रीक्वेंसी एंड द क्लास इंटरवल. अब दिस इज द क्लास इंटरवल. व्हाट इज द रेंज हियर? दिस इज 0 to 10. अब 0 to 10 एक क्लास इंटरवल है जिसमें जो 0 है वो है लोअर क्लास लिमिट एंड द 10 इज अपर क्लास लिमिट. ठीक है, यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज दिखाई दे रही हैं. एक तो वैल्यू छोटी वाली है, एक वैल्यू बड़ी वाली है. तो छोटी वाली वैल्यू को हम बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट और बड़ी वाली वैल्यू को हम बोलेंगे अपर क्लास लिमिट. सिमिलरली जो दूसरा इंटरवल है, दूसरे इंटरवल में 10 और 20 है, तो 10 हो जाएगा आपका लोअर एंड 20 हो जाएगा अपर क्लास लिमिट. सिमिलरली 20 and 30, 30 and 40 सबके लिए यही प्रोसेस है. ठीक है, अब नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स क्लास साइज. व्हाट इज क्लास साइज? क्लास साइज इज, लिख लो इसको, क्लास साइज द डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट, अपर class limit is called class size. तो बच्चों ये हो गया आपका क्लास साइज. तो आई थिंक सभी को समझ में आया होगा what is the meaning of lower class limit, upper class limit, class size and frequency and class interval. So these are the basic terms which you have to use in making a tabular form or either a tabular form or a graphical form. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने क्लास साइज देख लिया और बाकी सब कुछ देख लिया. Now we are going to discuss the difference between a bar graph and a histogram. So the difference between a bar graph and a histogram is, suppose we have to plot a graph. जैसे मैं पिछले वाला ही ले लूँ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40. These are the ranges, yeah, these are the class intervals that I made to group the information of the or class of the marks. So this is class interval and this is frequency. तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि 0 to 10 के बीच में कितने बच्चे आए हैं, यानी 0 to 10 के बीच में कितने बच्चों ने स्कोर किया है. सपोज देयर आर 2, 15, 7 एंड 3 मान लेते हैं. So this is the frequency. Now we have to draw a bar graph as well as a histogram of this given information of this grouped data. Now if we draw a bar graph, we will take class interval here in this side and frequency in this side. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपका इस साइड में आएगा और जो क्लास इंटरवल वो इस तरफ आएगा. ये जो पॉइंट आपका रहेगा वो 0 पॉइंट रहेगा. नाउ 0 to 10 हमें दिखाना है, तो 0 to 10, 20, 30, 40. दीज आर द रेंजेस. नाउ अगर हम यहाँ पे इसको प्लॉट करने की कोशिश करें तो ये आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12. तो मैंने 12 तक ले ली. पहला मुझे बताया हुआ है कि 0 to 10 2 स्टूडेंट्स हैं. 0 to 10 2 स्टूडेंट्स हैं. तो 0 to 10 में मैंने 2 स्टूडेंट्स बनाए. दिस इज अवर फर्स्ट बार, दैट इज 0 to 10 के बीच में 2 स्टूडेंट्स हैं. नाउ 10 to 20 देयर आर 15 स्टूडेंट्स. 10 to 20 देयर आर 15 स्टूडेंट्स. वेयर विल द 15 लाई? 15 विल लाई हियर, 14 and 16 हियर. तो 10 to 20 जो आया वो आपके 15 स्टूडेंट्स आए. दिस इज 15 एंड दिस इज 2. नेक्स्ट 7, 20 to 30 7 आएंगे.
तो यहाँ पे हमने किया 7 एंड 30 to 43 आ जाएगा, दिस इज 3. सो डोंट माइंड द लाइन्स आर नॉट स्ट्रेट बिकॉज आई एम डूइंग दिस हैंड. 2, 15, 7 एंड 3. तो ये जो था हमने रिप्रेजेंटेशन किया एज अ बार. ठीक है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ हिस्टोग्राम व्हेन दीज इंटरवल्स आर रेगुलर. ठीक है. अब ये बार और हिस्टोग्राम दोनों बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेशन में कोई गैप नहीं है. जहाँ पर भी गैप होता है, ये तो आप हिस्टोग्राम का रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से देख सकते हो. सपोज मैंने एक और ले लिया कि 5 स्टेट्स हैं, देयर आर 5 स्टेट्स एंड नंबर ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन. ये मैंने ले लिया जिनको नौकरी नहीं मिली 5 स्टेट्स में. अगर मैंने इसमें ये लिया नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, मैंने इस तरफ ले लिया और 5 स्टेट्स मैंने यहाँ पे ले लिए. 5 स्टेट्स कौन कौन से ले लिए? सपोज मैंने गुजरात ले लिया एक, देन एमपी ले लिया, यूपी ले लिया और एपी ले लिया. 4 ही ले लो, स्पेस नहीं है. 4 स्टेट्स मैंने यहाँ पे ले लिए. ये जो 4 स्टेट्स है इसमें नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो क्या आएगा. गुजरात में मान लेते हैं ग्राफ यहाँ तक गया, एमपी में जो ग्राफ था वो यहाँ तक गया, यूपी में ग्राफ यहाँ तक गया और एपी में ग्राफ यहाँ तक गया. ठीक है. मैंने अनइवनली बना दिया. तो आपने ये देखा कि एक पॉइंट पे एक बार बन रहा है, बीच में गैप आ रहा है, फिर एक पॉइंट पे एक और बार बन रहा है, फिर बीच में गैप आ रहा है, एक पॉइंट पे एक बार बन रहा है, फिर बीच में गैप आ रहा है. इट मीन्स देयर इज अ गैप्स बिटवीन दीज बार्स एंड दीज आर कॉल्ड बार ग्राफ. बट एक ऐसा बार ग्राफ जिसके बीच में 2 बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अ हिस्टोग्राम. अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है हिस्टोग्राम में. कभी कभी क्या होता है, 0 से वैल्यू स्टार्ट नहीं होती. सपोज 5 से स्टार्ट हुई. अगर ये 5 से स्टार्ट हुई तो आपको ये मिटा करके यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा. 5 से करना पड़ेगा 5 to 10. तो यहाँ पे बीच में गैप छूट गया. इस गैप को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से ब्रोकन लाइन से. ठीक है. ये जो ब्रोकन लाइन होती है, इस ब्रोकन लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ हिस्टोग्राम में. सो देयर इज द सेकेंड डिफरेंस कि यहाँ पे हिस्टोग्राम में स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है 0 से ही स्टार्टिंग हो. तो उस केस में हम लोग हिस्टोग्राम में इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ बार ग्राफ एंड ए हिस्टोग्राम. दैट बार ग्राफ में यहाँ पे बार समझो तो वो डिफरेंस होता है, यानी गैप होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता. So now you can easily identify what is histogram and what is bar graph. So this is all for today. मैंने लाइव क्लास में भी इतना एक्सप्लेन कर दिया था and I have started 5.1 also. But 5.1 एक्सरसाइज अभी नहीं कर रहे हैं. उससे पहले आपका एक क्लास टेस्ट होना है जो कि मंडे को होगा. आपको मैसेज डाल दिया जाएगा अबाउट द क्लास टेस्ट.